Humanistic approach Carl Roger. मानवतावादी दृष्टिकोण Carl Roger. Humanistic psychology is a perspective that emphasizes looking at the whole person and the uniqueness of each individual. मानवतावादी मनोविज्ञान वह दृष्टिकोण है जो संपूर्ण व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता पर बल देता है. Petrarch is called the father of humanism due to his significant contributions in reviving classical Latin manuscripts. पेट्रार्क को शास्त्रीय लैटिन पांडुलिपियों के पुनर्जीवन में उनके योगदान के कारण मानवतावाद का जनक कहा जाता है. There are three primary founders of humanistic psychology: Abraham Maslow, Carl Rogers, and Clark Mustakis. मानवतावादी मनोविज्ञान के तीन प्रमुख संस्थापक हैं: अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स और क्लार्क मोस्टाकस. Abraham Maslow is considered to be the father of humanistic psychology, also known as the third force. अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जिसे तीसरी शक्ति भी कहा जाता है. It emphasizes learner authority, autonomy, emotions and free will. ये शिक्षार्थी की सत्ता, स्वायत्ता, भावनाओं और स्वतंत्र इच्छा पर बल देता है. Proponents are Abraham Maslow, Carl Rogers, and James F. T. Bugental. इसके समर्थक अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स और जेम्स एफ. टी. बुगेंटल हैं. Features, assumptions, principles of humanistic. मानवतावादी दृष्टिकोण की विशेषताएं, मान्यताएं, सिद्धांत. Humans are active and creative people. मनुष्य सक्रिय और रचनात्मक प्राणी हैं. Learning is person-centered and individual. अधिगम व्यक्ति केंद्रित और व्यक्तिगत होता है. Subjective experience. व्यक्तिपरक अनुभव. Uniqueness of each individual. प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता. Teachers should be a source of motivation and facilitator for learners. Roger. शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत और सहायक होना चाहिए. Roger. Emphasizes the freedom and autonomy of learners. शिक्षार्थियों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर बल देता है. Study the individual case idiographic rather than the average performance of groups. Nomothetic. समूह के औसत प्रदर्शन नोमोथेटिक की बजाय व्यक्तिगत अध्ययन इडियोग्राफिक पर बल देता है. Carl Rogers. Carl Rogers. The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. रोचक विरोधाभास यह है कि जब मैं स्वयं को जैसा हूं वैसा स्वीकार करता हूं, तभी मैं बदल सकता हूं. Carl Rogers. Carl Rogers. Carl Rogers 1902-1987 was a humanistic psychologist. कार्ल रोजर्स 1902-1987 एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे. Carl Rogers is famous for self-theory of personality, positive regard, person-centered therapy, the fully functioning person and experiential learning. कार्ल रोजर्स आत्म सिद्धांत, सकारात्मक स्वीकृति, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, पूर्ण क्रियाशील व्यक्ति और अनुभवात्मक अधिगम के लिए प्रसिद्ध हैं. Major ideas of Carl Rogers. कार्ल रोजर्स के प्रमुख विचार. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. केवल वही व्यक्ति शिक्षित है जिसने सीखना और बदलना सीख लिया है. I have come to feel that the only learning which significantly influences behavior is self-discovered, self-appropriated learning. मुझे यह महसूस हुआ है कि वही अधिगम व्यवहार को प्रभावित करता है जो स्वयं खोजा गया और अपनाया गया हो. The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. रोचक विरोधाभास यह है कि जब मैं स्वयं को जैसा हूं वैसा स्वीकार करता हूं, तभी मैं बदल सकता हूं. The good life is a process, not a state of being. It is a direction, not a destination. अच्छा जीवन एक प्रक्रिया है, कोई स्थिर अवस्था नहीं. यह एक दिशा है, गंतव्य नहीं. When I look at the world I am pessimistic, but when I look at people I am optimistic. जब मैं संसार को देखता हूं तो निराशावादी होता हूं, लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूं तो आशावादी होता हूं. Rogers 1959 added that for a person to grow, they need an environment that provides them with genuineness, openness and self-disclosure, acceptance, being seen with unconditional positive regard, and empathy, being listened to and understood. Rogers 1959 के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए ऐसा वातावरण आवश्यक है जिसमें प्रामाणिकता, स्वीकृति और सहानुभूति हो. Rogers believed that every person could achieve their goals, wishes, and desires in life. When, or rather if they did so, self-actualization took place. रोजर्स का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य, इच्छाएं और आकांक्षाएं प्राप्त कर सकता है, और ऐसा होने पर आत्म साक्षात्कार होता है. 1. The self-concept. आत्म अवधारणा. The organized, consistent set of perceptions and beliefs about oneself. स्वयं के बारे में संगठित और सुसंगत धारणाओं एवं विश्वासों का समूह. Self-concept is the image of what we are, actual self, should be, ought self, and want to be, ideal self. आत्म अवधारणा वह छवि है कि हम क्या हैं, क्या होना चाहिए और क्या बनना चाहते हैं. The self is the humanistic term for who we really are as a person.
स्व मानवतावादी शब्द है जो बताता है कि हम वास्तव में व्यक्ति के रूप में कौन हैं। Two factors that influence our self-concept are childhood experiences and evaluation by others. आत्म अवधारणा को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, बाल्यकाल के अनुभव और दूसरों का मूल्यांकन। The self-concept includes three components. आत्म अवधारणा में तीन घटक शामिल होते हैं। Self-worth. Self-worth is the opinion you have about yourself and the value you place on yourself. आत्म मूल्य, स्वयं के बारे में आपकी राय और अपने आप को दिया गया मूल्य। Self-image. How you see yourself or perceive yourself. आत्म छवि, आप स्वयं को कैसे देखते या समझते हैं। Ideal self. The ideal self is the person that you would like to be. आदर्श स्व वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं। 2. Congruent and incongruent. संगत congruent और असंगत incongruent. Incongruent, असंगत। Self image, आत्म छवि। Ideal self, आदर्श स्व। The self image is different to the ideal self. आत्म छवि आदर्श स्व से भिन्न होती है। There is only a little overlap. इनमें बहुत कम समानता होती है। Here self actualization will be difficult. यहाँ आत्म साक्षात्कार कठिन होगा। Congruent, संगत। Self image, आत्म छवि। Ideal self, आदर्श स्व। The self image is similar to the ideal. आत्म छवि आदर्श स्व के समान होती है। There is a more overlap. यहाँ अधिक समानता होती है। This person can self-actualize. ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। Congruence, संगति. When a person's ideal self is consistent to their actual experiences. जब किसी व्यक्ति का आदर्श स्व उसके वास्तविक अनुभवों के अनुरूप होता है। Congruence is the matching of experience and awareness. संगति का अर्थ अनुभव और जागरूकता का मेल होना है। It is a compatible match between an individual's ideal sense of self and their actual experience of their sense of self. ये व्यक्ति के आदर्श स्व की भावना और उसके वास्तविक आत्मा अनुभव के बीच अनुकूल मेल होता है। Incongruence, असंगति. When a person's ideal self is not consistent with what happens in their life. जब किसी व्यक्ति का आदर्श स्व उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से मेल नहीं खाता। Incongruence happens when reality does not match up to our self-concept. असंगति तब होती है जब वास्तविकता हमारी आत्मा अवधारणा से मेल नहीं खाती। 3. Positive regard. Rogers believed that we need to be regarded positively by others. We need to feel valued, respected, treated with affection and loved. सकारात्मक स्वीकृति. रोजर्स का मानना था कि हमें दूसरों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, हमें मूल्यवान, सम्मानित, स्नेहपूर्वक व्यवहार किया गया और प्रेमित महसूस होना चाहिए। Conditional positive regard, acceptance or love with conditions. It means valuing someone based on conditions. सशर्त सकारात्मक स्वीकृति, शर्तों के साथ स्वीकार्यता या प्रेम। इसका अर्थ है शर्तों के आधार पर किसी को महत्व देना। E.g. I will love you if you crack RHT. उदाहरण, यदि तुम RHT पास करोगे, तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। Unconditional positive regard means accepting and respecting others as they are without judgment or evaluation or conditions. निःशर्त सकारात्मक स्वीकृति का अर्थ है बिना किसी निर्णय, मूल्यांकन या शर्त के दूसरों को जैसा वे हैं वैसा स्वीकार करना और सम्मान देना। 4. Experiential learning. Rogers introduced the idea of two different types of learning in his theory, cognitive and experiential. अनुभवात्मक अधिगम. रोजर्स ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के अधिगम बताए, संज्ञानात्मक और अनुभवात्मक। Experiential learning is the active process in which students learn information through discovery and exploration. It is a student-centered approach, addressing each student's needs and wants. अनुभवात्मक अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं। यह विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है जो प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और इच्छाओं को संबोधित करता है। 5. Person-centered therapy counseling. व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा परामर्श. Also known as person-centered therapy or Rogerian therapy is an approach to counseling that requires the client to take an active role in his or her treatment with therapist being non-directive and supportive. इसे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या रोजरियन चिकित्सा भी कहा जाता है। ये परामर्श का ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें क्लाइंट अपनी चिकित्सा में सक्रिय भूमिका निभाता है और चिकित्सक निर्देश न देने वाला तथा सहायक होता है। Also termed client-centered therapy, humanistic therapy or phenomenological therapy. इसे क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, मानवतावादी चिकित्सा या फिनोमेनोलॉजिकल चिकित्सा भी कहा जाता है। A congruent therapist who provides unconditional positive regard and empathy can stimulate change in a vulnerable person to become a creative, responsible, developing individual. एक संगत चिकित्सक जो निःशर्त सकारात्मक स्वीकृति और सहानुभूति प्रदान करता है, वह एक संवेदनशील व्यक्ति में परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है जिससे वह रचनात्मक, उत्तरदायी और विकसित व्यक्ति बन सके।
By providing a therapeutic atmosphere which is real, caring, and non-judgmental, the person can develop to their full potential. वास्तविक, देखभालपूर्ण और बिना निर्णय वाले चिकित्सीय वातावरण द्वारा व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकता है. There are 3 factors that determine the level of success of this therapy. 1. Genuineness. 2. Unconditional positive regard. And 3. Empathy. इस चिकित्सा की सफलता के स्तर को निर्धारित करने वाले 3 कारक हैं. 1. प्रामाणिकता. 2. निःशर्त सकारात्मक स्वीकृति. और 3. सहानुभूति. 6. Self actualization. आत्म साक्षात्कार. Every person wants to achieve his goal, wishes and desire in life. When he does, so self actualization take place. प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य, इच्छाएं और आकांक्षाएं प्राप्त करना चाहता है. जब वह ऐसा करता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है. Self actualization occurs when ideal self is congruent with real self. Roger called the self-actualized person, fully functioning person. आत्म साक्षात्कार तब होता है जब आदर्श स्व वास्तविक स्व के साथ संगत होता है. रोजर्स ने ऐसे व्यक्ति को पूर्ण क्रियाशील व्यक्ति कहा. 7. Organismic valuing. जीववैज्ञानिक मूल्यांकन. It refers to people's innate ability to know what is important to them, their own best directions in life that will lead them to a greater well-being and a more fulfilling existence. ये लोगों की जन्मजात क्षमता को दर्शाता है जिससे वे ये जान पाते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और जीवन की वह दिशा जो उन्हें अधिक कल्याण और संतोषपूर्ण जीवन की ओर ले जाए. 8. Meaningful and meaningless learning. अर्थपूर्ण और अर्थहीन अधिगम. Rogers introduced the idea of 2 different types of learning in his theory, cognitive and experiential. रोजर्स ने अपने सिद्धांत में अधिगम के 2 प्रकार बताए, संज्ञानात्मक और अनुभवात्मक. Experiential learning is the active process in which students learn information through discovery and exploration. It is a student-centered approach, addressing each student's needs and wants. अनुभवात्मक अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं. यह विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है. Cognitive learning is meaningless. संज्ञानात्मक अधिगम अर्थहीन होता है. 9. Rogers feels that the role of the teacher is to facilitate such learning. रोजर्स का मानना है कि शिक्षक की भूमिका ऐसे अधिगम को सुगम बनाने की होती है. सेटिंग अ पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर लर्निंग. अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना. क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ द लर्नर. शिक्षार्थी के उद्देश्य को स्पष्ट करना. ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेज. अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना और उपलब्ध कराना. शेयरिंग फीलिंग एंड थॉट्स विथ लर्नर्स बट नॉट डोमिनेटिंग. शिक्षार्थियों के साथ भावनाएं और विचार साझा करना, लेकिन उन पर हावी न होना. 10. Qualities that will facilitate freedom in the classroom. कक्षा में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले गुण. In his book Freedom to Learn, 1983, Rogers addressed 3 qualities needed for facilitating freedom in the classroom. अपनी पुस्तक Freedom to Learn, 1983 में रोजर्स ने कक्षा में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 3 गुण बताए. Realness in the facilitator of learning. अधिगम को सुगम बनाने वाले में वास्तविकता. Prizing, acceptance and trust. मूल्य देना, स्वीकृति और विश्वास. एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग. सहानुभूतिपूर्ण समझ. 11. फुली फंक्शनिंग पर्सन. पूर्ण क्रियाशील व्यक्ति. फुली फंक्शनिंग पर्सन इज वन हु हैज एम्ब्रेस्ड एग्जिस्टेंशियल लिविंग. पूर्ण क्रियाशील व्यक्ति वह है जिसने अस्तित्ववादी जीवन को अपनाया है. दे आर एबल टू लिव फुली इन द मोमेंट. वे वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीने में सक्षम होते हैं. दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ इनर फ्रीडम एंड एम्ब्रेस क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट एंड चैलेंज. वे आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और रचनात्मकता, उत्साह और चुनौतियों को अपनाते हैं. द फुली फंक्शनिंग पर्सन. पूर्ण क्रियाशील व्यक्ति. ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अनुभव के प्रति खुलापन. क्रिएटिविटी. रचनात्मकता. ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्टिंग. जैविक आत्मिक विश्वास. एक्सपीरियंशियल फ्रीडम. अनुभवात्मक स्वतंत्रता. एग्जिस्टेंशियल लिविंग. अस्तित्ववादी जीवन. सी पियर्सन. 12. रेलेवेंस, एप्लीकेशन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. 13. प्रासंगिकता, अनुप्रयोग और शैक्षिकी निहितार्थ. 1. पर्सनलाइज्ड लर्निंग. 1. वैयक्तिकीकृत अधिगम. 2. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. 3. विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण. 4. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. 5. स्वनिर्देशित अधिगम. 4. पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. 4. सकारात्मक अधिगम वातावरण. 5. फॉस्टरिंग एंगेजमेंट टू इंस्पायर स्टूडेंट्स टू बिकम सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न. 6. सहभागिता को बढ़ावा देना ताकि विद्यार्थी स्वयं प्रेरित होकर सीखने के लिए प्रेरित हों. 6. एक्सपीरियंशियल लर्निंग. 6. अनुभवात्मक अधिगम. 7. डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. 7. रचनात्मकता का विकास. 8. फीलिंग्स एंड नॉलेज आर बोथ इंपॉर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस एंड शुड नॉट बी सेपरेटेड.
8 भावनाएं और ज्ञान दोनों ही अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट पिएजे